All right, children. So in the previous class, we studied different types of carbon atoms. Okay, that is 1 degree carbon atom, 2 degree carbon atoms, and 3 degree carbon atoms. If the carbon atom present in an organic compound is attached to only one carbon atom, then it is called 1 degree carbon atom. Similarly, if the carbon atom present in an alkane is attached to two carbon atoms, then it is known as 2 degree or secondary carbon atom. Similarly, if the carbon atom is attached to three other carbon atoms, then it is called tertiary. And if it is attached to four carbon atoms, then it is called quaternary carbon atom. Okay, we also defined what is iso, when is iso prefix used, and when is neo or tertiary prefix is used. Next category that we are going to study is alkenes, that is unsaturated hydrocarbons. So children, what do you mean by unsaturated hydrocarbons? Unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons which consist of either double covalent bond between two carbon atoms or triple covalent bond between two carbon atoms. So those hydrocarbons which consists of either a double covalent bond between two carbon atoms or triple covalent bond between two carbon atoms. So सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. unsaturated hydrocarbons are those carbon atoms which contains either double covalent bond between carbon atoms. इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे C double bond C and two valencies on which on both the carbon atoms, or which contains either double covalent bond between two carbon atoms or triple covalent bond between two carbon atoms. So depending upon the number of covalent bonds present between two carbon atoms, unsaturated hydrocarbons are classified into two types. One is called alkenes and another is called alkynes. Alkenes and alkynes. Okay. So let us study alkenes first. Alkenes are unsaturated hydrocarbons. Alkenes are unsaturated hydrocarbons which contains at least one carbon double bond carbon bond. Alkenes are unsaturated hydrocarbon which contains at least one carbon double bond carbon bond. You can write like this. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कम से कम एक होना चाहिए उसमें. ठीक है. दे हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n. What is the general formula of alkenes? CnH2n. Alkenes are also known as olefins. जैसे अल्केन्स को क्या बोलते हैं बच्चों? हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ा था. अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स. पैरा मीन्स मिनिमम, फिन्स मीन्स रिएक्टिव. ठीक है. पैरम और फिन्स. सो पैरम लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लीस्ट और फिन मतलब रिएक्टिव. सिमिलरली alkenes are also known as olefins, where ओले मीन्स, ओले का मतलब क्या होता है? ऑयल, लैटिन वर्ड में. और फिएंट मीन्स फॉर्मिंग. दो लैटिन वर्ड्स हैं. एक वर्ड है ओले विच मीन्स ऑयल और दूसरा फिएंट से आया फॉर्मिंग. So olefins means oil forming. That means
द ऑयल्स आर मेड अप ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, वेदर इट इज नेचुरल ऑयल और मिनरल ऑयल, they are made up of alkenes because these alkenes are oil forming hydrocarbons. Now let's see some members of homologous series of alkenes, ठीक, and their IUPAC nomenclatures, ठीक है. So formula of alkene, formulae of alkene, then IUPAC name, IUPAC name, and third column you may write common name. हालांकि कॉमन नेम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए. कई बार कंपटीशन में कॉमन नेम से कंपाउंड को दे देते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा कंपाउंड है. आईपीएससी नेमिंग तो हमको आ जाता है, हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर जानने लगते हैं, समझते रखते हैं, लेकिन कॉमन नेम हम भूल जाते हैं. तो कॉमन नेम भी थोड़ा याद रहे तो अच्छा है. सो व्हाट विल बी फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन्स? बताओ, अल्कीन का पहला मेंबर कौन सा होगा? इथीन। इथीन. इथीन, ओके. जहां पे हमेशा ध्यान रखना एन की वैल्यू क्या होगी. एन वुड बी 2 3 4 डैश डैश डैश. हियर एन कैन नेवर बी 1, क्योंकि 1 है तो डबल बॉन्डिंग ही नहीं होगी फिर. सो फर्स्ट मेंबर H2C डबल बॉन्ड CH2, ठीक. नेम विल बी इथीन. एंड व्हाट विल बी इट्स कॉमन नेम? इथाइलिन. इथाइलिन इज द कॉमन नेम. देन सेकेंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. इसमें भी देखिए एक डबल बॉन्ड है, बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, सो इट्स नेम वुड बी प्रोपीन, ठीक है. और ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिन. प्रोपाइलिन विल बी द कॉमन नेम, ठीक. देन 3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी इट्स नेम? इसका नाम क्या? हाँ बोलो. ब्यूटीन. अच्छा, ब्यूटुइन। ब्यूटूइन. देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, दो पॉसिबिलिटीज हैं. बोर्ड दिख रहा है आपको? अगर यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन एटम नंबर 2 पे, इधर चलते हैं, 1 2, डबल बॉन्ड कार्बन एटम नंबर 2 पे है, तो हमको 2 मेंशन करना पड़ेगा. आप मेंशन नहीं करते तो इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है और यहाँ हो सकता है डबल बॉन्ड, तो भी वो ब्यूटीन होगा. और अगर बीच में आ गया तो भी ब्यूटीन होगा. तो फिर हम दो कंपाउंड को एक ही नाम कैसे दे सकते हैं? इसलिए वी शुड गिव द नंबरिंग टू द कार्बन एटम टू विच द डबल बॉन्ड इज अटैच्ड. इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट टू इन. क्योंकि देखिए नंबरिंग कर दी, चाहे इधर से चाहे इधर से, 1 2 3 4 कार्बन एटम की नंबरिंग की हमने. तो इसमें जब आप 1 से चल रहे हैं लेफ्ट साइड की ओर, तो कार्बन एटम नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है. इसलिए उसको नंबरिंग 2 देना पड़ेगा. तो नेम वुड बी ब्यूट टू इन. बस एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में अगर कोई नंबर आता है तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आना चाहिए. whenever there is a number and an alphabet, then number and alphabet must be separated by dash sign, and two numbers must be separated by comma. So but to in, what will be its common name? Beta butylene, ठीक है. बीटा ब्यूटाइलिन इज इट्स कॉमन नेम. अल्फा ब्यूटाइलिन क्यों नहीं बोला बच्चों? क्योंकि अल्फा कब बोलते? जब आप इसकी नंबरिंग करोगे और उसमें ये हो जाएगा अल्फा कार्बन एटम और ये हो जाएगा बीटा कार्बन एटम. अल्फा बीटा देन गामा डेल्टा, इस तरह से कॉमन सिस्टम में भी नोमेनक्लेचर होता है. सो अल्फा में डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड कहाँ है? बीटा कार्बन एटम पे है, इसलिए इसको बोलेंगे बीटा ब्यूटाइलिन. ऑल राइट. द नेक्स्ट कंपाउंड
इफ आई टेक इज वन मोर कंपाउंड ले लेते हैं बस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब ये कंपाउंड जब है, देखिए बेटे, इसे 5 कार्बन एटम है। नंबरिंग यहां से करें तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? कार्बन एटम नंबर 2 पे आ रहा है। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? कार्बन एटम नंबर 3 पे। अगर आप राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो कार्बन एटम नंबर 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो कार्बन एटम नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। हम किसको सही मानते हैं? जिधर से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्डेड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एटम को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इनका लोकेंट, इनकी पोजीशन मिनिमम होनी चाहिए। इसलिए ये नीचे वाली नंबरिंग जो होगी वो गलत होगी। ऑलराइट, so its name will be, how many carbon atoms are there? 5, so it will be pent. Double bond is present at position number 2 in, pent 2 in would be its IPAC name, and common name will be beta pentylene. Pentylene. ठीक है, similarly we can name other alkenes. Next class of unsaturated hydrocarbons is alkynes. Alkynes. ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2, where n equals 2 3 4 dash dash dash. So alkynes are unsaturated hydrocarbons which contains at least one carbon triple bond carbon bond. Alkynes are unsaturated hydrocarbons which contains at least one carbon triple bond carbon bond. ठीक है, some examples of homologous series of alkynes are as follows. First, ethyne, H, C triple bond, CH. There is a single triple bond, that means it is alkyne. Name would be ethyne. IUPAC name would be ethyne, or eth1-ine you can write. What will be its common name? Common name will be acetylene. जबकि अल्कीन में क्या था? इथाइलिन। उधर इथाइलिन था, यहाँ एसिटाइलिन। ठीक है, सेकेंड, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो बच्चों, ये जो ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड C, ये एसिटाइलिन है। इस एसिटाइलिन ग्रुप में अब इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया? वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय मिथाइल, इसलिए कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिटाइलिन। एक मिथाइल एसिटाइलिन में एक्स्ट्रा ऐड हो गया। आईपीएसी नेम क्या होगा इसका? कार्बन एटम नंबर 1 2 3, कार्बन एटम नंबर 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? प्रोपाइन। ठीक है, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन। थर्ड, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड T CH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है,
बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये आपका क्या हो गया, कॉमन नेम के हिसाब से एसिटाइलिन ग्रुप हो गया। ठीक है, इस एसिटाइलिन में एक मिथाइल लगा है, एक और मिथाइल लगा है, दो मिथाइल लगे, इसका मतलब डाई मिथाइल बोल देंगे इसको। आईपीएससी तो इजी है, 1 2 नंबरिंग करें इधर से तो भी 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, राइट साइड से करें तो भी 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। सो नेम विल बी ब्यूट टू आइन। ब्यूटाइन नहीं लिख सकते आप इसको, जब भी 3 से ज़्यादा कार्बन एटम है तो आपको पोजीशन लगाना कंपलसरी हो जाएगा। 3 तक है तो अल्टीमेटली पोजीशन वही रहेगी, 1 ही रहेगी, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 4 या 4 से अधिक कार्बन एटम हो जाएंगे पोजीशन विल बी कंपलसरी, क्योंकि पोजीशन कैन बी वेरीड। अगर सेकंड पे नहीं होता तो यहाँ पे लगा देते तो क्या हो जाता, ब्यूट 1 आइन हो जाता। ठीक है, सो ब्यूट 2 आइन एंड व्हाट विल बी कॉमन नेम, डाईमिथाइल एसिटाइलिन, डाईमिथाइल एसिटाइलिन। फोर्थ CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम देखो बच्चों क्या हो सकता है, ये क्या हो जाएगा आपका एसिटाइलिन ग्रुप। आईयूपीए कॉमन नेम के लिए, आईपीएससी तो आप कर लेंगे, इजी है। अब इसमें देखिए आईपीएससी अगर करते हैं तो नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते थे, राइट साइड से भी कर सकते हैं। सही कौन सी होगी, जिधर से डबल बॉन्डेड कार्बन को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। सो करेक्ट नंबरिंग फ्रॉम वुड बी फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। जब हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, कार्बन एटम नंबर 2 पे आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट टू आइन, पेंट टू आइन। ठीक है, एंड व्हाट विल बी कॉमन नेम। चलो कॉमन नेम कोई मुझे बताओ, मैं देखूंगा आपको कॉमन नेम समझ में आ रहा है कि नहीं, कोशिश करो इसका कॉमन नेम। सर ट्राई मेथाइल एसिटाइलिन। कौन है, नाम बोलो। सर सुहानी। सुहानी। ट्राई मिथाइल तो है ही नहीं बेटा, देखो यहाँ पे एक एक मिथाइल है, इधर ये मिथाइल कहाँ है, ये तो CH2 है ना, CH3 नहीं है। ये CH3 CH2 मिलके क्या हो गया, इथाइल। इधर मिथाइल इधर इथाइल, क्योंकि दो कार्बन एटम हो गया ना, ये C2H5 इज नोन एज इथाइल ग्रुप, दो कार्बन एटम है इसलिए। एक साइड मिथाइल है, एक साइड इथाइल है, बीच में एसिटाइलिन है। अब बोलो नाम। सर इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, कैन बी राइट मिथाइल इथाइल एसिटाइलिन। सर अल्फाबेटिकल। करेक्ट। ठीक है, सो जो भी सब्स्टिट्यूएंट हम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर इधर देखिए क्या है, ये मिथाइल, ठीक है, और इधर ये क्या हो गया ग्रुप, इथाइल। ठीक है, इथाइल में ई है, मिथाइल में एम है, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ई, सो हमको पहले ई लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका ये हो गया, इस आईपीएस, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल, फिर उसके बाद मिथाइल और एसिटाइलिन, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, पंडित जी हैं तो पंडित जी को अगर आइन सफिक्स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पंडिताइन। अरे वाह क्या बात है। रितु, ठाकुर है तो ठाकुराइन। ठाकुराइन। और बनिया है तो बनियाइन। ठीक है, ये सब जोक की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक की बातें हैं। ठीक है, आप बोर ना हो इसलिए। ऑल राइट, सो आपको सफिक्स लगाना ये आ गया, और आईपीएससी नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर फॉर अल्केन्स अल्कीन्स एंड अल्काइंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट week after this, yes, anybody want to say something, no, next we come to
डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या है? द कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड by adding some functional groups to hydrocarbons are known as derivatives of hydrocarbons। ठीक है, इसमें बहुत से टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स, और विल राइट मोनो हेलो अल्केन्स, मोनो हेलो अल्केन्स। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स और मोनो हेलो अल्केन्स। अच्छा बच्चों, मोनो का मतलब वन, हेलो कब यूज करेंगे? हेलो प्रीफिक्स कब यूज होता है? जब कौन से एटम्स प्रेजेंट हो? हेलोजेंस। और हेलोजेंस के लिए क्या सिंबल यूज होता है? एक्स। एक्स में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, सो इफ fluorine is attached in the organic compound then it is called fluoro, if chlorine is attached in the organic compound then it is called chloro, bromine is attached then bromo, iodine is attached then iodo। ठीक है, अगर एक ही फ्लोरीन अटैच है मोनोफ्लोरो, ठीक है, टू है तो डाईफ्लोरो, थ्री है तो ट्राईफ्लोरो, फोर है तो टेट्राफ्लोरो। ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स मस्ट बी इंडिकेटेड बाय यूजिंग द prefix numerical prefixes mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca etc। ठीक है, सो अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 1 x, क्योंकि अल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2। ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन अगर हम यहाँ से हटा दें प्लस 2 से तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 बचेगा, और हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद जो वैलेंसी फ्री होगी उस वैलेंसी से एक हेलोजन एटम इसमें अटैच हो जाएगा। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनो हेलोएल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स बिकम्स CnH2n plus 1 give rise a bonded single bonded X। सब मेंबर्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। सो कंपाउंड या फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला, फिर IUPAC नेम, ठीक, उसके बाद कॉमन नेम। ठीक है, जैसे हमने लिख लिया एग्जाम्पल में CH3Cl, व्हाट वुड बी IUPAC नेम? मैंने आपको बताया था कि देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स, उसमें सभी हेलोजेंस भी आते हैं। सो प्रीफिक्स के रूप में क्लोरो का यूज होगा, इट विल बी क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, और सिंगल कार्बन एटम इसलिए क्या बोलेंगे? मीथेन। जबकि कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। सिमिलरली अनदर नेम CH3CHCH3Cl, क्या नाम होगा इसका? बोलो। क्लोरीथेन, क्लोरो इथेन। इथेन क्यों? 3 कार्बन एटम की चेन हो गई बेटा, 1 2 3। ये जरूरी नहीं कि चेन हमेशा स्ट्रेट लाइन में हो, चेन ऐसे भी जाके हो सकती है, बस उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। सो कितने कार्बन एटम की चेन हो गई? 1 2 और ये 3, 3 कार्बन। क्लोरोप्रोपेन। हाँ जी बोलो, क्लोरोप्रोपेन, किसने बोला? सर राज। राज। क्लोरोप्रोपेन तो आपने बोल दिया, अब ठीक है। अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ CH3CH2, उसके बाद CH2Cl, इसका नाम आप क्या बोलोगे? क्या ये क्लोरोप्रोपेन नहीं है? ये भी तो हो गया ना, 1 2 3।
3 कार्बन एटम की चेन है, उसमें क्लोरो लगा है, मतलब क्लोरोप्रोपेन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रह जाएगा? सर इस Cl की पोजीशन अलग अलग है। करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, क्लोरीन कार्बन एटम नंबर 1 पे बॉन्डेड है, इसमें क्लोरीन जो बॉन्डेड है वो कार्बन एटम नंबर 2 पे बॉन्डेड है। सो 1 2 एंड 3। अब बोलो राज, क्या होगा नाम? राज, यस सर। अब इसका नाम बोलो क्या होगा? अरे पोजीशन बोलना है बस, कुछ नहीं। 2 क्लोरो, क्लोरोप्रोपेन ना बोल के क्या लिखेंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। अगर 1 पे रहता तो क्या बोलते हैं? 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ क्लोरीन इज अटैच टू सेकेंड कार्बन एटम ऑफ द चेन, सो 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर? यस सर। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। प्रोपाइल क्लोराइड। क्यों प्रोपाइल क्यों होगा? प्रोपाइल तब होगा जब सभी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में हों। प्रोपाइल तो तब बोलेंगे जब सभी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में हो। स्ट्रेट चेन में तो नहीं है, चेन में है लेकिन स्ट्रेट चेन में नहीं है। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था सुबह कि व्हेन द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द चेन इज अटैच टू वन मिथाइल ब्रांच। क्या ये सेकेंड लास्ट कार्बन एटम मिथाइल ब्रांचिंग है? इसमें नहीं है, यहाँ पे ब्रांच नहीं है, ये लॉन्ग चेन का ही पार्ट है। ठीक है। और जो क्लोरो है वो किस में अटैच्ड है? 2 डिग्री कार्बन एटम पे अटैच्ड है। क्लोरो इज अटैच टू 2 डिग्री कार्बन एटम। और जो सेकेंड कार्बन एटम है वो उससे ब्रांच में मिथाइल अटैच नहीं है। ये तो ये पूरा एक चेन है, मिथाइल इज नॉट इन ब्रांच। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक ये होता CH2 और ये फिर Cl होता, तो 1 2 3 ही हो जाता, ये मिथाइल ब्रांच हो जाती। तब इसको हम आइसो बोल देते। आइसो कब बोलते? जब सेकेंड लास्ट कार्बन एटम एक मिथाइल ब्रांच से अटैच हो जाता, नंबरिंग फिर इधर से हो जाती 1 2 3, और ये मिथाइल ब्रांच में आ जाता। ठीक। लेकिन इस केस में तो ऐसा है नहीं। तो इसमें क्या लिखा है? ये Cl डायरेक्टली अटैच्ड है 2 डिग्री कार्बन एटम से, सो इट्स कॉमन नेम विल बी सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। ये कैसा कार्बन एटम है जिसमें क्लोराइड अटैच है? सेकेंडरी। सो सेक प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। सेकेंडरी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सेक। ये समझ में आई मेरी बात? सेकेंडरी कब यूज करते हैं और आइसो कब यूज करते हैं? सेकेंडरी कब यूज किए? जब जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच है किससे? 2 डिग्री कार्बन एटम से, सेकेंडरी इज यूज। ठीक। secondary can be also, iso can be used for secondary carbon atom provided the second last carbon atom must contain methyl branch। अब वो कब होता? जब यहाँ पे एक और CH2 लग जाता और Cl लग जाता, तो आपकी लॉन्ग चेन हो जाती 1 2 और 3 कार्बन एटम की। ठीक है। आप लॉन्ग चेन आपकी ये हो जाती, तो फिर ये क्या हो जाता आपका? ये हो जाती ब्रांच। तो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम is containing one methyl branch, so it would have become iso। अभी हम इसको आइसो नहीं कह सकते, अभी ये क्या है? सेकेंडरी है, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। CH3 CHCl CH3। देन थर्ड एग्जांपल। अच्छा, वही वाला जो अभी मैंने बता रहा था उसी को ले लो। तो CH3 C CH3, उसके बाद CH, उसके बाद इसको ले लो CH2Cl। ठीक। अब ये कार्बन एटम कैसा है? 1 डिग्री। ये वाला कैसा है? 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम, सो इट इज 3 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला 1 डिग्री कार्बन एटम, ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम। एंड अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में आपका फंक्शनल ग्रुप जरूर आना चाहिए, इसलिए नंबरिंग इधर से ही होगी जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। तो 1 2 एंड 3, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई, जिसमें नंबरिंग इसकी 1 हो गई, बीच वाले की 2 हो गई और इसकी 3 हो गई CH3 की।
ये 2 और ये थर्ड कार्बन एटम, ये मिथाइल जो 1 डिग्री मिथाइल है, दैट हैज बिकम द ब्रांच. सो द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम इज कंटेनिंग 1 मिथाइल ब्रांच, सो प्रीफिक्स आइसो विल बी यूज्ड इन कॉमन नोमेनक्लेचर. जबकि इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, बोलिए. ये हो गया कार्बन एटम नंबर 1, ये 2 पे क्या है, मिथाइल ब्रांच. सो 2 मिथाइल, बोलो, 1 क्लोरो सर 1 प्रोपेन. क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. नहीं, अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा. अब हाँ, तुम देखो, अब इसमें क्या होता है, जो क्लोरो है उसको भी हम सब्स्टिट्यूएंट में काउंट करेंगे और मिथाइल को भी सब्स्टिट्यूएंट में ही काउंट करेंगे ब्रांच में. अब फिर अल्फाबेटिक. हाँ बेटा, सर आइसोब्रोटाइल प्रोपेन तो नहीं होगा? वो कॉमन है बेटा, कॉमन नेम में नहीं, पहले आईपीएससी में आ जाओ. कॉमन तो भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है. आईपीएससी नोमेनक्लेचर में देखिए क्या होगा, ये ब्रांच हो गई आपकी, ये लॉन्ग चेन है. लॉन्ग चेन की नंबरिंग क्या किया, 1 2 3. 2 पे मिथाइल ब्रांच है और 1 पे क्लोरो ब्रांच. क्लोरो को अब फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है. सो अब क्लोरो और मिथाइल, क्लोरो और दूसरा है मिथाइल. अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, एम क्या है, बाद में आता है, सी पहले आता है. इसलिए इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो फिर डैश 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. ठीक है. 1 क्लोरो, क्योंकि कार्बन एटम नंबर 1 पे क्लोरीन है और 2 पे मिथाइल ब्रांच है और टोटल ये क्या है, प्रोपेन है. तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप 1 मिथाइल 2 मिथाइल 1 क्लोरो ऐसा नहीं लिख सकते. यहाँ पे आप इन दोनों सब्स्टिट्यूट, बोथ आर कंसिडर एज सब्स्टिट्यूएंट, दोनों का अल्फाबेटिक ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. तो सी वुड कम बिफोर एम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. सो आईपीएससी नेम वुड बिकम 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. अब कॉमन नेम की बात करेंगे तो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे मिथाइल ब्रांच प्रेजेंट है, इसलिए आइसो आ जाएगा इसमें. आइसो प्रीफिक्स आ गया आइसो. अब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, जब आइसो लिखते हैं बच्चों तो ध्यान रखना, अब इसमें हम सिर्फ आइसो, इसको प्रोपाइल नहीं करेंगे. व्हेन वी राइट आइसो वी काउंट होल ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. 1 2 3 4 कार्बन एटम हमको पूरा यूज करना है इसमें, क्योंकि आप ब्रांच के लिए आइसो आपने यूज कर लिया ऑलरेडी. सो आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा. आइसोब्यूटाइल क्लोराइड वुड बी इट्स आईपीएससी नेम. अब उसमें आप ये मत देखना, आईपीएससी और कॉमन को मर्ज मत कर देना. हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं आईपीएससी सिस्टम में, कॉमन में नहीं देखेंगे. कॉमन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लेंगे अगर आइसो प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो. ठीक है, आया समझ में. नेक्स्ट, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स. इसी का दूसरा हिस्सा हो जाएगा पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स. जब एक से अधिक हेलोजन एटम्स अटैच हों, देन व्हाट वी डू, वी यूज द प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा. तो डाई कब यूज करेंगे, जब 2 हेलोजन्स हो. ट्राई कब, जब 3 हेलोजन हो. फोर टेट्रा का भी यूज करेंगे जब 4 हेलोजन्स हो तब. फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl Cl. अब इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, 2 क्लोरीन यूज हो गए. आईपीएससी नेम वुड बी 1 2 डाइक्लोरो इथेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन. ठीक है. डाई का पहला लेटर, ये पहला लेटर हमेशा नेम का कैपिटल. 1 2 डाइक्लोरो इथेन. Similarly, if I write another example, CH3Br, CH
CH2Br, CH2 और उसके बाद ये CH2Br, इसका क्या नाम होगा? नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3. सो IPAC नेम वुड बिकम 1 and 3 डाइब्रोमो प्रोपेन. ठीक है, 1 पे एक ब्रोमो है और 3 पे ब्रोमो है, सो 1 3 डाइब्रोमो प्रोपेन वुड बी IPAC नेम. अनदर एग्जांपल CH3C Cl Br CH2I. इसका नाम बताओ बच्चों, चलो ट्राई करो, लास्ट एग्जांपल, इसका नाम बोलो. सर हाँ जी, सर 2 ब्रोमो 2 क्लोरो करेक्ट. 1 आइडो प्रोपेन. वंडरफुल, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट. अब देखिए, पहले हमने नंबरिंग कर लिया इधर से 1 2 3. 2 पे क्या है? ब्रोमो भी है, 2 पे क्लोरो भी है और 1 पे आइडो है. जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इन सब को हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे. सो अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले बी आएगा, बाद में सी आएगा, उसके बाद आई आएगा. सो विल राइट 2 ब्रोमो, देन 2 क्लोरो, 1 आयोडो प्रोपेन. ऑल राइट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये. नेक्स्ट, आफ्टर दिस विल स्टडी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, दैट इज सर एक अल्कोहल. मिनट. हाँ ठीक है, कल के लिए हम छोड़ देते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स. मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जिसमें एक ही अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, एंड दैट वी विल स्टडी इन द मॉर्निंग क्लास. बट कल मॉर्निंग क्लास होगी नहीं, नहीं है फ्राइडे को आपकी है, कल 10th की नहीं होगी. ठीक है, आपकी सैटरडे को नहीं है. लिख लिया बच्चों? यस सर. Okay, so the clock says it is 4:42 and